Good evening, everyone. Hi. Just say hi in type box in question answer if I am audible to you all. Hi. Good evening, all. Hi. We'll start our session for the day and let's understand. Hi. Good evening, all. I hope many of you have the workbooks which we have shared with you who have gone through the registration process. They would have received a workbook. Can you keep your workbooks alongside? I will establish how we have to use this. It's the most important document, I'll say, which will become an asset for all of you post 5 days as a session. Just keep that workbooks who has received that. In case you have not, I'll just ask team to share the WhatsApp link or the Drive link to download that post session also. Those who have may say yes. Just say yes. Sharjat, can you just lower down your hand, please? Those who has received say yes in chat box. The workbook. Please don't raise hand. Just say yes. Type yes. Those who has workbook. It will help a lot. Yeah. So we'll start our session. Let's go to our slide number 1 and let's understand what we are trying to talk today, what we have to discuss. So, Mridul, are we? Yes. Can we go to slide 1? All of you just take a moment and think, right? It's July 235. We are in July 226 now, almost like 9-10 years from now. Some are 35, some would be 40, some would be 55, some would be young, 27, 28. Let's just imagine, right? You wake up, you were half asleep, and your phone bell rings, right? It's a morning time. A recruiter offers you that they are paying a job offer of 60 lakh rupees, right? We keep hearing a lot of IIT graduates, a lot of some graduates rather get those offers in life, right? And 60 lakh, what you would say, right? Now, here is my actual question actually. So, why did they call you, not your classmate? Are you a topper? Can you think? Just think honestly, right? Can you answer that? You got an offer of 60 lakhs. You are not a classroom topper. Why you got that offer, right? Neither could I have at your age got that kind of offer. I cannot imagine that, right? But when I have your answer, not mine, right? One thing we have to understand very clearly that all of us want to grow in our life and we are talking our career. So we'll have our understanding as what we have to do in this session. And I have to tell you, I mean, a truth, embarrassingly, long in my whole career, I took long time to get these kind of offers. Nobody paid 60 lakhs to me at least if I am an engineering graduate, if I am actually a master's from maybe IIMS, or maybe I would have done master's degree somewhere in US and back in India. I cannot imagine myself getting those kind of offers at all, right? I today understand as a situation, we all need to imagine why they will offer us a job like that, right? First and foremost thing. How many of you understand this as a story is something what we are trying to have this. It's not at this moment you are looking for some job break. We have to understand what is pretty much there for us as a career, which is always growing. We see as what goals, dreams we have laid in our life that is happening as a success, not only today, post 9 years, right? So when that happens, maybe somebody is a programmer. That's why he got 60 lakhs. Can you think? Can anybody answer in chat box quickly why anybody will get, say, from 9 years, 60 lakhs a year? Can you just imagine and answer that? 7, 8 years, 9 years from today, 10 years from today.
Just try to answer that in the Q&A box, right? There is a box. A lot of people, Karan is saying skills. I am still waiting, consistently learning and upskilling. So I want more answers. Can you just type an answer, right? He's saying consistently learning and upskilling. More of you, if you can answer these questions, right? So maybe let's move. Let's understand. You may keep that to you. I would say that right in your workbook somewhere that also is there, right? So what we have to understand, nobody pays 60 lakhs for your degree. Degrees everywhere, right? Company pays you for one thing, the problems you can solve for them, right? If you can something fix as what they aspire, maybe as a product, maybe as a business problem, right? Maybe you help them fix their costing issues. Maybe you help them as a consultant in some sales process, maybe human resource, right? And that process is so important for business. They know that only you can solve that, or maybe some of you like can solve that. Then only offer comes like these in your life, right? We would have seen some newspaper advertisements cuttings also, why some of those folks are offered big salaries in companies like Google. Then we understand what is the secret of big salary. Maybe that is too late for us, right? It is not luck. It is not the relationship or contact somebody would have referred. Maybe first job comes by reference, but not by contacts as later the growth in life. It is always the person who solves the most expensive problem for the company. Let's start with our session. Let me give you a quick introduction again. Some of you met in pre-orientation. I am Manoj Gupta, being in industry for more than 30 years. A lot of you know me. I'm inside the business world today. I'm building business. I'm building companies as consulting. I'm hiring many of people every year, getting plenty of things wrong also everywhere. I mean, it is not true that I'll do right thing always, right? It happens. I can do lots of mistakes. So what I have to understand is I'll try to ask maybe all of you can think who are already employed, you want to get employed. First and foremost thing, who have piece of paper, who are sitting in a clean place. Please understand, try and have your own memory. What you dream as your first job, your first salary, or something you completely misunderstood about the careers, right? We have to understand 60 seconds, be honest to yourself, think about your first job, or maybe a job today as what you want to do, your first salary or today's salary, what you think. This is one moment sets. I'm not looking for any answers on WhatsApp. I'm just trying to give you an understanding. And let's understand I'm not a trainer, right? I'm not here for any kind of training. I'm an entrepreneur. I have good $10 million business. If some of you understand, I've been successful or not, I know myself. I'll share my story in next 4 or 5 days as we keep moving. I come from a very humble family. Let's understand more and more and let's have clarity. So 60 seconds to all of you, have a sigh of relief. Just think your first job, your first salary, who are starting your career, who are in middle to restart, what kind of job, salary, career you are thinking about. Just write as an imagination. I don't need anything from me. This is for you. And when the workbook comes tomorrow, go through 4 or 5 pages. Keep that workbook for you as a confession, what we call it as many times. Please do that, right? So, a small thing, let's understand in the head, we should be clear about your margin, your general, your words, what you feel about your career right now. Are you excited or are you confused? Maybe some of you are very confused, which has led you to come to this situation to understand the enterprise career. Maybe you want to grow. Whatever is true, I don't know. Nobody will see it. It is with you. You will see it again and again. Please write that as a word of something. Again, are you confused? Are you afraid? Right? Please understand. Right? So maybe you can give a reaction on the Q&A box as what you think. Right? Can we go to next slide? Why we are at day 1?
We are still at day one, Mridul. Can we move to next slide? Yeah. So I have asked you a question. Who do I want to become? Right? I am not asking you engineering degree. I'm not asking you technology. I'm not asking you just a simple question, what you have to keep with you, right? I hope everybody understands this. I'll share this presentation on YouTube as a channel also. Maybe I'll do a snapshot. But please, if you want to take a picture, take a picture. I'm expecting that you write this on your workbook for sure, right? I hope this is something what we can do. Now, let's go to next slide quickly. And after 1 week, we will answer this again. Actually, that is what enterprise career I'm going to share. I'll help you understand much better story. And let's understand what we have to do end of today also. We have to understand how the world is, what is changing today in the enterprise career. This AI thing also came into picture. Let's understand some sample four major enterprise career as today. We'll keep on discussing every day more and more. We will understand this as session progresses. So first is we have to do our career discovery general activities, which is very, very personal to you. And with that workbook, which I will share with all of you who are attending, maybe tomorrow you can spend some personal time on that. And let's have a different way of thinking about our future, right? Let's understand we are here not for any kind of job. I'm not offering any SAP training at this moment. I do not wish to have anybody joining that guaranteed programs. No AI training is happening easily. I'm just asking, think about your career and think about yourself. Also, write one question for you. Are you afraid? Are you excited? What is making you to be in this journey for next 5 days? Maybe I'll ask you personally tomorrow and we'll do more discussions to understand to take things forward. Right? Let's go to now next slide and let's understand what we have. So again, I'll go back to 2016. We go to a lot of campuses, by the way. In our own experiences, I run my own business. Maybe some of you understand my business is SAP consulting, IT consulting. We are growing by almost 400 folks. We work across the globe. We do go to a lot of campuses now. We do hire people from that. Even IIM's graduate we hire. We go to some best in class engineering degrees. So I'm giving you this as a story first. Let's understand to have two classmates who are in the same college, same degree, right? And let's understand as two seats apart in the final exam. Just, I mean, they are very near to each other. Okay, so let's have this story in detail to understand as what we have to share, right? So this is basically what we are going to discuss, understand, and let's have more and more discussions to keep discussing as this story as we move forward, right? So let's see this more from the perspective as what we have to do. Okay, just imagine first. So when we have these two students who were just two seats apart, they were following same syllabus, same teachers, same placement season, right? And we met them on the graduation day, asked to predict their futures. We asked them to flip a coin, on paper identical maybe, right? These two, both children or the students, I will say, were same, right? So what I want to poke a belief first, many of us are carrying right now, maybe without knowing it, the belief that our college marks are going to decide our future, right? Some of you are proud of your college, some of you are maybe feeling otherwise, that what bad college I am in. Both groups, let's understand the same thing. What matters, what you think, how your degree is going to start your line. That's all. After the first job, nobody will ask about it, where actually you are passed from, right? Let me tell you the fact. I am being in interview panels for senior roles where the degree was one line at the bottom, not at the end or not on the top, what we try to read through. We always see one starting point, same point, differently. The difference has to come from somewhere else.
It is always the decisions that we take in our career. These are something what will help us. We will forget about our bank accounts, interest, stories that we keep thinking left and right. So let's come back to 2026 now. 10 years have passed, and let's understand again how these two looks like, right? The understanding today, what we have to do is how these two classmates look like today. Let's go to next slide. So these are two very different responses. What I want to give you as an understanding, right? I just want to give you understanding. One was hired as a campus, and one was given a job maybe in some multinational companies. He would have thought he is in kind of a software engineering or maybe a sales job, so many years, same skills. He was doing some coding, some testing. After 10 years, he said he was very much in a comfort zone, right? He is having absolutely same routine after 10 years. So maybe we think we are hired with one of the big multinational companies. We are in a safe career zone. We are now a software engineer. We come with so many responsibilities in 9, 10 years, marriage, maybe kids, maybe buying a car, maybe paying loans. So many things are happening in our day-to-day life. I am just passing through as a routine. Now, this another person has thought through that what is the market needs today. That time also, today also. I am saying 10 years back, somebody would have told him that this Salesforce, this SAP thing, these are happening. And that time, he or she did a course, right? On the 10 years journey, every month, this individual, maybe a boy or female or whatever we want to think about, is doing so many journeys as continuous learning, corrections, mistakes, but learning is something which is never stopped, right? Today they are understanding AI tools. Tomorrow they will understand something what will come with time. But that learning, adaptation with time, keep creating, having those impact journeys is something what we want to understand is the actual difference between the two. One may be expert in the coding skills. He understands what he has to deliver. Maybe I have seen these examples so many times in my life. After 10, 12, 15 years, somebody would have been working at multinational career. He looks very different than the person who would have hopped maybe 3, 4 jobs. He is experimenting, he is continuous learning. He did not got any chance as a campus program. Nothing bad about it, right? Did not had any campus placement, struggled to get a sales job or struggled to get some kind of opening. Lot has happened in the career. But one decision which has never stopped is every day, every week, every month learning something new. What are core market skills that are abilities being built over a period of time? So, what are you? Are you learning just right in your book? Are you doing that as a ritual in your life? Or you have stopped? I don't know. Just do that as a process for you. You will understand that much more better. You think, are you a learner? Are you not? What skills you have just planned 6 months back? Are you having those on the scale of 1 to 5? Write something that this is the skills that we have thought through with you, not with me. Or maybe 1 year back or 2 year back, somebody would have thought, I'll do a Photoshop course. I would be able to make videos. Somebody would have thought differently. These are your thoughts, not my thoughts. Keep that with you. I'll ask more and more in the time. Okay. So let's understand how these two different responses has made the life, what would have taken them ahead, and how they have been in position today after 8, 9 years. Let's go to next slide. So see, let me try and elaborate. We work with companies like Haldiram today, right? We work with these are Haldiram is if somebody has to tell you is valuated, maybe very few of you know, as close to $10 billion, right? $10 billion if we try to look into business as a Haldiram group has got funding for their 15
8% share or some 10% share, close to 15,000 crore rupees. See, that is one experience we have. Us working with our largest airline, us working with some of the best in class enterprises to growing enterprises also. We have seen so much. So, what we have to understand first is we become an engineer, we become something as possible with an MBA degree. What roles we get hired in? Maybe our customer is in manufacturing, or as a company that we want to join as a dream company is in supply chain. Maybe somebody is in a retail business, somebody is doing something like suppliers, distribution market, and they all have customers too. So, one thing common is what we have to understand every business has customers as service or as a product they sell. Every business has something as suppliers, right? And they do around it as a service. Maybe if we have to think about airlines today, what they sell you a flying journey between two destinations, maybe Delhi to Mumbai, Delhi to Bangalore. What they sell, a flight service to you. So their product is airlines offering passenger services as flight, which is very much domestic or could be regional if they fly to Dubai, Singapore, or Thailand. Like that, every industry has something unique about them as products. If you look at another service industry who sells insurance, maybe a third company as hotel business, they sell hotel rooms, spa, restaurant service. And these are some service examples I gave. But if we try to look at what we have more, they are selling something as FMCG, snacks, savories, sweets, what you buy from a company like Nestle, or maybe you buy something like Haldirams. They are in that kind of business. So we all need to understand everybody's selling either a product or a solution or a service, right? Be it any business, they will have customers and suppliers, and they could be in any kind of business, right? So we have to understand these functions very carefully. When we say somebody is in retail business, they buy from someone like Van Heusen, it is getting sold in Pantaloon stores. So what we have to understand, a business runs with strategy, there is product and solutions, they have lots of operations every day, everyone is dying for customer experience, and there are a lot of support functions in that business as human resource, as finance, or could be IT, what you are doing, right? So this entire gamut of business today runs on IT. Can you think Zomato without IT? Can you think Swiggy without IT? Impossible, right? So if you see right in corner, there is a small function which we wrote as IT, finance, human resource. These are called as support functions, but critical functions these days. These are backbone, right? So how many of you understood the enterprise world? Do you understand enterprise world? Say yes or no. Everyone would, right? So everyone did, right? So yes, nice. So now we will do actual thing, right? So how large the business is actually behind the job titles is something what we need to understand first. Do not think about any job. Let's understand what we have to know much better, right? Let's go to next slide and get understanding of it. So how many of businesses exist today? Can you imagine? I mean, worldwide, if we have to see, we just know 10 IT companies, we know maybe 20 retail companies, we understand hardly maybe 50 odd companies today, what we aspire to get employed with. If you are a first time employer, or in case you are working with Accenture, you will just think that I want to be in KPMG or maybe Deloitte as a thoughts of choice. But most of us are not even aware of that worldwide there is something called as Fortune 100, Fortune 1000. These kind of ratings are there. And today close to how much? मेरे से तो ये जीरो भी गिनती नहीं हो रही. कोई बता सकता है टाइप करके इसको हिंदी या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? How many companies worldwide run their operations? Right? Just think how many companies exist. This is 80% number
what we are just trying to make you understand of the total businesses or some 70% of the business, right? Imagine such a big number of businesses. We'll understand that more. So every company, what we need to understand, has customers for sure, has suppliers who could be supplying something. Then there is maybe manufacturing, and maybe there is a service, what they do to have a back office. If you try and understand it back again, it cannot run on spreadsheets. I just gave you example of Zomato and Swiggy. Can they run on spreadsheet? My daughter told me कल पापा वो दाल गिर के आई जोमेटो में और मैंने क्लेम मांगा और जोमेटो ने खट से मेरे को वो दाल का क्लेम वापस दे दिया. तो कोई सिस्टम होगा ना पीछे, राइट? दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर. सो वो सिस्टम इतना बढ़िया था कि माय डॉटर गौरी who did a complaint, as first she placed an order on Zomato, then somebody was supplying as a restaurant, somebody was facilitating that. Zomato तो खुद अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता ना, Zomato तो किसी रेस्टोरेंट से आपको लाकर देता है. तो वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, प्लेटफॉर्म, जो रेस्टोरेंट और कस्टमर्स के बीच में एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट कर रहा है और सर्विस है. रोज लाखों ट्रांजेक्शन्स होती हैं एंड दैट्स हाउ दे मेक मनी, राइट? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एज एन इंटीग्रिटी. तो दुनिया में ये जो पूरा कामकाज है, दैट वर्क दैट हैपेंस, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, डज नीड फाइनेंस एज कस्टमर. माने मैंने कस्टमर को कुछ बेचा और कंपनी के पास कुछ पैसा आया. अगर आज एक जोमेटो का एग्जाम्पल लेंगे हम, तो हमने जो वो 4,000 रुपीज का कोई फूड ऑर्डर किया या एक पिज्जा ऑर्डर किया 400 रुपीज का, तो आप कस्टमर हैं, यू आर द कस्टमर टू होम Zomato has sold something actually as a Domino pizza. और डोमिनो ने किसको सप्लाई किया? वो जोमेटो को दिया, क्योंकि जोमेटो का आदमी वहां से वो उठाकर आपके पास लेके आया. अगर आप रेस्टोरेंट से डायरेक्ट खरीदते तो आप डोमिनो के कस्टमर होते, राइट? डोमिनो वुड हैव सोल्ड यू पिज्जा. बिकॉज यू आर यूजिंग जोमेटो एज अ प्लेटफॉर्म, तो आप जोमेटो के कस्टमर है, राइट? आपको ये बात समझ में है कि कस्टमर रिलेशन क्या होता है? आई होप लॉट ऑफ यू आर क्लियर, राइट? ऐसे ही हमें हर एक अगर प्रोसेस को यहाँ पे समझना है, तो डोमिनो जैसे कंपनी में आपको लगता है कि वो पिज्जा का बेस वहां पे बना हुआ रखा होता है, वो कोई ब्रेड सॉफ्ट फॉर्म में बेलते हैं, आप वहां पे देखा होगा. व्हेन यू गो टू दैट रेस्टोरेंट, they will just do that dough job and they will make that fresh bread. They will put all those cheese and so many things. That means there is a supply chain for that restaurant who is supplying enough quantity from some factory of Domino to ensure it can deliver those hundreds of pizzas of variety every day, to ensure that as customers you get those pizzas fresh in 20 minutes, right? Or 30 minutes, whatever promise they have. So do you imagine this kind of a system which does not have integrated supply chain, finance, or human resource thing, and to have manufacturing, all needs to be orchestrated together as a system of records. This is what actually a system like SAP or maybe a Salesforce application or Shopify has to deliver as an outcome to the business. Is that clear to all of you? अब समझेंगे कि अच्छा काम कौन कर पाएगा. जिसको ये बात समझ में आएगी उसको आज सेशन का पूरा जिस्ट समझ में आ जाएगा एक बार में, राइट? तो आपको समझ में आ गया कि एक डोमिनो कंपनी है, एक जोमेटो कंपनी है, एक नेस्ले कंपनी है, एक कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक एयरलाइंस है, हजारों कंपनी है दुनिया में. दो प्राइमरी रिलेशन है, एक कस्टमर, एक सप्लायर. उसके बीच में कंपनी विल डू देयर ओन प्रोसेसेस एंड एनीथिंग टू एवरीथिंग विद मनी, विद पीपल, विद कस्टमर्स. कस्टमर से हमने पैसा लिया, जोमेटो ने उसको 2 दिन बाद या उसी समय डोमिनो कंपनी को वापस कर दिया. उन्होंने अपना कमीशन रख लिया. तो कस्टमर कौन है? आप. और सप्लायर कौन है? डोमिनो. जोमेटो के केस में तो वो सप्लायर को हम वेंडर भी बोलते हैं. और ये पूरा का पूरा सप्लाई चेन is what moves with hundreds and thousands of customers every day, and this cannot run on spreadsheet, right? We know that very well. तो अब आएंगे नेक्स्ट माने क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए
कि वो दो जो बच्चे थे, एक कोडर था और एक बच्चा था जो बहुत सारे बच्चे एआई से लेकर एनीथिंग टू एवरीथिंग दे आर जस्ट लर्निंग 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 कॉन्टिन्यूसली, राइट। बहुत कुछ है यार। आप तो आजकल यूट्यूब से लेके कुछ भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू folks to explore. You have so many beautiful things around you as a knowledge, and this world has absolutely changed since then, right? तो ये जो कंपनी के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, स्विगी का एक सॉफ्टवेयर है जो आप देखते हो, वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में ऐप है। उसको हम सीआरएम बोलते हैं, लेकिन पीछे कोई पैसे का हिसाब रख रहा है। वो एसएपी जैसे एक ईआरपी सॉफ्टवेयर में होता है। हर एक कंपनी के पास एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है जो मार्केटिंग सेल्स को एंगेज करता है। अब दाल गिर गई, दाल का हमने वापस एक सर्विस रिक्वेस्ट क्रिएट किया, फिर पैसे के हिसाब में से लेन देन घटना या बढ़ना हुआ, यानी एक फाइनेंस का सिस्टम है जो शाम को बताता है आज हमारी कितनी सेल्स हुई, कितने पैसे आए। ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेता होगा कितनी कमीशन पे करनी है इतने सारे रेस्टोरेंट ओनर्स को, एक्चुअल मनी कितना ट्रांसफर होगा, हमारे पास बैंक में कितना आया, कितना पेमेंट यूपीआई से रिसीव हुआ, कितना पेमेंट क्रेडिट कार्ड से आया। सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। आर यू लाइकिंग दिस? जस्ट से yes or no, right? Just say yes and no if you have to understand. So we can imagine any business. I'm just opening up. Understand this thoroughly. Are you liking this? I'm just getting one Supriya's response. Tarun, Yuvraj, Vikram, right? तो आप और बहुत सारे आंसर्स चाहिए मेरे को, आपको समझना होगा। उर्वी इज ऑल्सो सेइंग यस। बहुत कम यस हैं, बहुत सारे यस चाहिए मेरे को, वरना मेरे को पढ़ाने में क्या मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। पांडे जी थैंक यू। राम पांडे के बाद जवाब ही नहीं आ रहा है कोई, राइट। सो धरनी इज देयर, धारिनी थैंक यू, अली इज देयर, प्रसाद जी इज देयर, सो मेनी ऑफ यू, राइट। थैंक यू गाइस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड एंड अंडरस्टैंड मोर। अगली स्लाइड पे जाते हैं, समझते हैं, और आज हमारे को इस सेशन में आने का कुछ फायदा मिलना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड, करियर समझेंगे हम, इसीलिए आए। जाइए नेक्स्ट। तो हमने देखा, आई मीन व्हाट वी हैव सीन, बिजनेस एक्चुअली वर्क्स ऑन थ्री थिंग्स। वन इज पीपल। अगर ये लोग नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, एआई भी नहीं चलेगा। एआई को चलाने के लिए जो हम ऑगमेंटेड एआई बोलते हैं, वो ऑगमेंटेड एआई एक टर्म है, मैं आपको शायद थर्ड फोर्थ सेशन में बहुत अच्छे से सिखाऊंगा कि ऑगमेंटेड एआई क्या होती है। ऑगमेंटेड एआई मतलब एआई को जब तक आप कुछ बताओगे नहीं, कुछ डेटा नहीं दोगे, यानी आदमियों के बिना, तो वो भी काम नहीं करेगी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज पीपल। दूसरा है ये प्रोसेस, प्रोसेस नहीं तो कुछ नहीं। और तीसरा है टेक्नोलॉजी, राइट। चाहे वो कस्टमर के लिए हो, चाहे रिटेलिंग बिजनेस में हो, चाहे वेयर हाउस के लिए हो, चाहे फैक्ट्री के लिए हो, चाहे फाइनेंस के लिए हो, चाहे मैनेजमेंट के लिए हो। और इस सब ट्रांजेक्शन्स में एक बिजनेस में, जैसे हम एक रिटेल कंपनी के लिए काम करते हैं, वो खुद से अपने बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बनाता है मेंस वियर के, और वो अपने खुद के 400 स्टोर्स में रोज सामान बेचते हैं। 400 स्टोर्स व्हाट दे हैव एज देयर ओन बिजनेस, जिसको हम ईबीओ बोलते हैं रिटेलिंग टर्म्स में। उनके नॉर्थ के, साउथ के, ईस्ट के, वेस्ट के, क्योंकि कलर के चॉइसेस अलग अलग हैं, कपड़ों के हिसाब से उनके जैसे उनको स्टॉक करना होता है, वहां पे वो वेयर हाउस में भेजते हैं, अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं। अगर हम विजुलाइज करें तो कस्टमर ऑनलाइन खरीदता है, और उसको वो चाहे तो वहां पे दुकान में जाकर विजिट करके भी खरीद सकता है। आई एम ट्राइंग टू बी यूजिंग मोर कॉमन डे टू डे लैंग्वेज। If anybody has problem, he can type and say English only. I'll try to keep explaining in both languages. My audiences are from India, so I'm trying to make it as simple as for all of you, right? So, अगर आप नमकीन सोचे तो आप ब्लिंकिट से खरीद लेते हैं रोज। ब्लिंकिट आपके लिए इस केस में रिटेलर हो गया। उसकी आप क्विक सर्विस ऐप यूज कर रहे हैं, उसका कोई डार्क वेयर हाउस होता है। हल्दीराम की फैक्ट्री में वो नमकीन बनी थी, एक सप्लाई चेन से वहां पे वो डार्क स्टोर तक पहुंच गई। इंश्योर करना था कि आपको वो सारी भुजिया एंड ऑल दैट मिक्स फ्लेवर वाले कॉर्नफ्लेक्स टाइम से मिले। इस सब का पैसे का हिसाब होगा। और मैनेजमेंट को क्या चाहिए होता है? हाउ मच आई एम सेलिंग, वेयर आई एम सेलिंग, हाउ मच मनी आई हैव रिसीव्ड, हाउ मच इज माई स्टॉक्स, हाउ आई एम परफॉर्मिंग, राइट।
अगर कोई भी बिजनेस देखेंगे, हॉस्पिटल देखेंगे, तो वहां पे उनको बिजनेस ओनर्स को देखना होता है कितने ओपीडी में आए, कितने आईपीडी में आए, कितने लोगों ने फार्मेसी से प्रोडक्ट खरीदा, कितने सर्जरीज के बिल आए। एनीथिंग टू एवरीथिंग then depends upon the business dashboarding, which is required by the senior organization, which we call it as CXOs and the business owners. So this is how business works as an example again, if we have to get into deep dive understanding, right? इसके बीच में एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी होता है, उसको इंश्योर करना होता है कि ये सारे लोग अलग अलग जॉब्स एंड पोजीशन के हायर हो, कुछ प्लानिंग हो उसके पीछे, सैलरी एंड वेजेस पहले से प्लान हो, कितना हम सैलरी दे सकते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक देम डिफिकल्ट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ सॉलिड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड business actually does not work on programming skills. It needs people, it needs process, it needs technology, right? Let's go to next slide. तो मृदुल, जब आपको पोलिंग कराना हो आप बीच में बता सकते हैं, है ना? अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जो आपको नोट करना है, सबको समझना है अपनी लाइफ में। देखो, आप सबको ये पता है कि एक आईटी कंपनी है, व्हाट यू नो एज एक्सेंचर ऑफ द वर्ल्ड, डिलॉयट ऑफ द वर्ल्ड, maybe you know 100 of IT companies today. One more fact I want to share today with all of you. इंडिया में 1800 से ज्यादा जीसीसीज हैं। कितने लोगों को पता है जीसीसी क्या होता है? How many of you know what is GCC? Just say yes, right? Just say yes if you know it. If you don't know, I'll explain, right? If you want to know, if you are excited to know, first who know GCC, say yes. Only Supriya is saying. So very few people are aware of GCC. इसको भी समझते हैं और let's understand more clearly what these GCCs are all about. Manas also said yes. Perfect. So we have to know this also of fact. इंडिया में तकरीबन 1800 प्लस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं आजकल। और ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या होता है ऐसा समझते हैं। कितने लोग को पता है मर्सिडीज कहाँ की कंपनी है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल वेयर मर्सिडीज बिलोंग टू? जस्ट टाइप क्विकली, जस्ट टाइप क्विकली, हाउ मेनी ऑफ यू नो वेयर मर्सिडीज हेडक्वार्टर्स आर? मर्सिडीज बेंज। Dr. Saab is saying, yes, I know. So maybe some of us know Mercedes-Benz is a German company. Thank you, Ram Pandey, for answering it perfect, right? हमें पता है कि मर्सिडीज बेंज एक जर्मन कंपनी है और पहले हो सकता है कि मर्सिडीज बेंज अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं एज ए मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, सेल्स, फाइनेंस, यही सब काम करते होंगे, ह्यूमन रिसोर्स। मर्सिडीज बेंच को सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत है? यही जरूरत है ना। तो हमने वर्ल्ड वाइड बताया कि मोर देन 400,000 बिजनेस हैं जो आज की डेट में एसएपी जैसे ईआरपी सॉफ्टवेयर या सेल्स फोर्स जैसे, सेल्स फोर्स एप्लीकेशन को हम सीआरएम भी बोलते हैं कभी कभी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। आज पहला ही दिन है, एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि मर्सिडीज बेंज कंपनी ने सोचा कि हम अपना खुद का एक इंडिया में ऑफिस खोलेंगे, वो हमारे जर्मनी के सेंटर को डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करेगा। या हमारी एक साउथ अफ्रीका में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इंडिया में भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सेल्स हम वर्ल्ड वाइड करते हैं, तो हमारे को एक इंडिया में सेंटर खोल लेना चाहिए जो आईटी, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, कस्टमर सपोर्ट, ऐसे बहुत सारे काम एक ही जगह में हम खुद करेंगे। इसको बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। और इंडिया में इस समय 1800 से ज्यादा बड़ी कंपनियों के सेंटर्स हैं, राइट? रिलायंस ने भी अपना बिजनेस के लिए खुद एक सेंटर खोला हुआ है जहां पे वो सारा काम खुद करते हैं। वो बोलते हैं हम आउटसोर्सिंग नहीं करेंगे। मैंने अभी एक स्टारबक्स की स्टोरी पढ़ी थी, उन्होंने बोला एआई के सारे इनोवेशन अब हम खुद करेंगे, हमें माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम जैसे कंपनियों की जरूरत नहीं है, राइट? और ये आप इमेजिन करो, एक सेंटर में अगर कोई आज 500 से 5,000 लोग काम करते हैं तो इंडिया में जो जीसीसी की जॉब है वो कितनी सारी होंगी। यामा जैसी कंपनी का जीसीसी सेंटर फरीदाबाद में है, राइट? लॉट ऑफ अस डोंट नो अबाउट ऑल दिस, so maybe as an eye opener I am sharing with all of you, they pay more money, they help you grow faster,
and they need lot of expertise as what we are, right? So India has more than 1,800 global capability centers who does IT, finance, HR, supply chain, customer service, so many business functions. वो इसलिए यहाँ पे खोल लेते हैं भाई, क्योंकि अगर आप जर्मनी में एक आदमी को हायर करेंगे ह्यूमन रिसोर्स का, जो कि रिमोटली डिजिटली काम कर सकता है, तो उसको शायद 7, 8, 10, 12, 15 हजार यूरो देने पड़े। और इंडिया में अगर बहुत अच्छा एचआर का सीनियर आदमी हायर करेंगे तो उसका सैलरी 3, 4 हजार, 5 हजार यूरो होगा, जो उनके लिए बहुत बड़ा पैसे का सेविंग है। अगर आप 5 हजार यूरो को कन्वर्ट करके देखेंगे तो बहुत कम लोगों को पता होगा, 1 यूरो माने $120, या सॉरी $120, $130, it keeps fluctuating. If we talk it in terms of dollars, $5,000 is nearly 5 lakh rupees today. जर्मनी में उस आदमी की सैलरी शायद 15-20 लाख रुपीज हो। जैसा देश वैसा खर्चा, लेकिन काम तो वही कर रहा है हिंदुस्तानी, और कुछ हिंदुस्तानी को तो जर्मन बोलनी भी आती है, तो ये भी एक स्किल हुआ ना। वो शायद वो लड़की का जो मैंने स्टोरी सुनाया था, अब हम समझेंगे कि वो बेहतर या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोडर बेहतर, राइट? लेट्स कीप मूविंग। अब आगे चलते हैं। तो आज अगर हम मार्केट में ध्यान से देखेंगे तो एंटरप्राइज जॉब्स में, या एंटरप्राइज जॉब्स में ऑलमोस्ट, अगर आज 25 आदमियों की जरूरत है एसएपी में, तो सिर्फ एक आदमी हमें मार्केट में मिलता है जो उस जॉब के लायक होता है। ऐसा आप अपने पास लिख के रखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है। एचआर में भी अगर हम टेक्नोलॉजी स्किल सेट में जाएंगे तो बड़ी मुश्किल से 5 में से एक आदमी इस लायक होता है। और जो मैंने आपको पूरा कंज्यूमर बिजनेस समझाया था, किसी को सेल्स आती है, किसी को सप्लाई चेन आता है, बहुत कुछ है उसमें भी, तो उसमें 4 में से एक आदमी को मुश्किल से आता है। तो ऐसे भी तो एक हॉट स्किल है, हमने सुना है, हम समझेंगे ये क्यों हॉट स्किल है। ऐसे भी आपको नहीं सिखाने आया मैं, बेहतर काम है आपके लिए। जरूरी नहीं आपको एसएपी एज अ करियर ही चाहिए, हम ये भी एक डिस्कशन पॉइंट में जाके समझेंगे कि आप बहुत बेहतर करियर, बहुत अच्छा करियर बना सकते हो अपना। आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक आपके लिए सिर्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म है एज अ कोडिंग, वो आपका करियर नहीं है। और हमने एक एग्जाम्पल से कुछ समझाया था, 60 लाख रुपए का जॉब करियर, राइट? दैट इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग। सो द गैप एंड द डिमांड इज आउटपेसिंग सप्लाई। आज अगर हम एक जॉब में इंडिया में आदमी ढूंढने जाएं, तो हो सकता है मेरे को कॉल सेंटर के लिए 100 पोजीशन के लिए 10 हजार लोग इंटरव्यू देने के लिए आ जाएं। ऐसा पॉसिबल है इंडिया में, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट जो उस दिन लायक लोग मिलेंगे, जो उस स्किल के लायक हैं, जिसको वो काम आता है, वो बहुत कम है, बहुत कम है। 10 हजार इंटरव्यू कौन करेगा भाई? आजकल बिल्कुल टेक्नोलॉजी रोल प्ले करती है, हम समझेंगे उसको, राइट? दैट्स हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो लिमिटेड स्किल सप्लाई, वी ऑलवेज नो दैट somebody would have been recruiters, वो रात को बैठ के यूएस में यही काम करते रहते हैं सारा दिन, और बोलते हैं आजकल मार्केट डाउन हो गया। वो भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं 5 दिन के लिए। मैं मृदुल को बोलूंगा एक कॉल कराए, जरा सबके साथ देखें क्या बात समझ में आ रही है। आपके स्क्रीन के ऊपर एक पोलिंग आ रहा है, जल्दी से इसके ऊपर बताइए, आपको पता है क्या कि इस प्रोग्राम से आपको क्या मिलने वाला है? आप शायद अपने करियर के लिए डेफिनेशन बना सकें, राइट? आप स्किल्स के ऊपर कुछ काम कर सकें, इंडस्ट्री के बारे में आपको जानकारी मिले। अभी बहुत कम जवाब आ रहे हैं, बहुत सारे जवाब चाहिए, सबके जवाब चाहिए। 17, 20, तेजी से चौके छक्के मारिए, फटाफट बताइए। तो आउटकम तो हमें कुछ चाहिए भाई, राइट? इसलिए तो इस करियर वर्कशॉप में हम आए हैं। और मैं आपको जो ये वर्कशॉप करा रहा हूँ, मैं फिर से रिआइट्रेट करके बताऊंगा, जब मैंने किसी से ये सीख रहा था तो बहुत सारे पैसे दिए थे। आई एम डूइंग दिस एज पार्ट ऑफ माई CSR एक्टिविटी, क्योंकि मेरे को आपके जैसे बहुत सारे लोग कभी लिंक्डइन में मैसेज करते हैं, कभी व्हाट्सएप में करते हैं, कोई कहते हैं सर का जवाब ही नहीं आया। We will talk about all of that thoroughly. We'll understand what we have to do, right? So लगभग आप में से 40 लोगों के ये आंसर मिले अभी तक। कुछ और दे दीजिए भाई, मैं फिर ये पोलिंग को बंद करूंगा, आगे बढ़ जाएंगे। और लोग के पास लगता है
41, थोड़ा सा और बढ़ाइए जल्दी जल्दी, मेरे को पता लगना चाहिए आपका क्या इंटरेस्ट है, राइट? सो आई फाइन ट्यून द प्रोग्राम। और नेक्स्ट 5 दिन की जर्नी में मैं, बड़े बड़े 2-3 CEO दोस्त हैं मेरे, आप सोच भी नहीं सकते। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल रीस्टार्ट किए हैं करियर, एक आपको ऐसी जर्नी शेयर करेंगे। कुछ CIOs की जर्नी शेयर करेंगे, वो खुद आएंगे आपसे बात करने। बड़ा इंटरेस्टिंग है अगले 4 दिन। आप जो सोचते हो ना कि मेरे को एक बार मौका मिल जाए, आप उन लोगों से मिलोगे, ऐसे लोगों के पास जहाँ पे हम सोचते हैं कि इसकी कंपनी अगर हम ज्वाइन कर लें तो वाह, मेरा करियर बन जाएगा। आई गेट ऑल ऑफ देम ऑन द बोर्ड टू मीट यू as much as possible, right? So let's move. Let's stop this polling, end the poll. Let's move to next, right? Let's share the results. एक सबको बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछने में आया सबसे ज्यादा, विच स्किल्स शुड आई बिल्ड, राइट? सबको अब स्किल्स की चिंता हो गई। मैंने बताया भाई स्किल्स सीखना आजकल बहुत इजी है, स्किल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई SAP सीखना है, मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा, आपको कोई समय लगाने की, मेरे साथ पैसे देके किसी महंगे इंस्टीट्यूट में SD, MM, फीको, HR, ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, भूल जाइए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव एन एम्फेसिस। नोबडी हैज टू डू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट? विल टॉक अबाउट इट एज वी मूव फॉरवर्ड इन जर्नी। कोई बोल रहा है मैं वो 30,000 रुपए का कोर्स कर लूँ, कोई कहता है मैं 5 लाख का कर लूँ, कोई कहता है मैं वहां जाके कर लेता हूँ, गारंटेड जॉब मिल जाएगी। ये सब बेकार की बातें हैं। लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट। अपने बारे में सोचो, आपको क्या करना है एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। वी विल टॉक इन डिटेल, राइट? और वो बच्चे की जर्नी समझेंगे। मैं भी पीछे जो मैंने दिखाया था, 2 लोग थे, एक डेटा एनालिस्ट लगा तो 10 साल बाद भी एक्सेल में डेटा एनालिस्ट वाला काम कर रहा है, कोई सेल्समैन लगा तो सेल्स का ही रोल करे जा रहा है, और कोई वो हमने बोला सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई टेस्टर था तो 15 साल बाद टेस्टर ही है, कोई रिक्रूटर था तो रिक्रूटर ही बैठा हुआ है। और उसके बाद वो कोई बच्चे कोई SAP का कोर्स कर लेते हैं, पहले कोई CCNA करता था, कोई MCSC कर लेता था, और फिर वो पहली जॉब का ब्रेक मिल जाए, वी कीप रनिंग अराउंड द वर्ल्ड, हे भगवान मुझको पहली बार कोई जॉब दे दे, राइट? ऐसा कोई ट्रिक नहीं है भाई। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। प्लीज अंडरस्टैंड, विल अंडरस्टैंड ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस व्हाट दे एक्चुअली लुक फॉर। तो एक बच्ची है यहाँ पे, वो कहीं पे टेस्टिंग कर रही है, और उसने पूछा मेरे को क्या करियर चाहिए, ये मेरे को बताना होगा उसको। मैं उसको ये नहीं बता, वो पहले मेरे को पूछती थी कि SAP ट्रेनिंग कर ले क्या, ऐसे नहीं यार, SAP का ट्रेनिंग करने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट करियर यू वांट। SAP का ट्रेनिंग में पैसा बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करना है हमें, या कोई सेल्स फोर्स, कोई पावर BI, कुछ नहीं करना है अभी। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। 5 दिन सिर्फ अपने करियर पे फोकस करेंगे, और हमको जिस रोल में पहुंचना है उस रोल को हम अंडरस्टैंड करेंगे, हमारी स्ट्रेंथ को समझेंगे, हमारी वीकनेसेस को समझेंगे, हमें उसके ऊपर रोज लर्निंग करके वहां तक पहुंच जाना है। सो विल अंडरस्टैंड दैट मैजिक, दैट इज व्हाट एंटरप्राइज करियर इज ऑल अबाउट। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा और आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, ठीक है? हम सबको पता है कि AI क्या है, थोड़ा थोड़ा we understand from own perspective. So AI is doing something as human judgments? No. Is it having a creativity and original thinking of its own? I don't think so. Does it have ownership? AI के पास कोई अथॉरिटी है क्या? अगर AI के बारे में आप पूछोगे तो क्या AI डिसाइड कर सकता है क्या कल को हमारा कितना प्रोडक्शन होना है, कितने लोग हायर होने हैं? AI तो कुछ आउटकम बता देगा, डेटा। AI कुछ नहीं कर सकता आदमी के बिना, पहले ये सोच लीजिए। AI सिर्फ डेटा और कंटेक्स्ट के ऊपर चलता है। आप जितना अच्छा उसको कंटेक्स्ट और डेटा देंगे, हो सकता है वो आपके बिहाफ पे इनवॉइस को बार बार प्रोसेस करना शुरू कर दे, जो लोग अकाउंट पेबल में रोज बैठ के क्लरिकल एंट्री करते हैं। या हम लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना है कि AI जो है ना आजकल कोडिंग कर देता है। तो कोडिंग करना कोई वो सॉफ्टवेयर स्विगी की ऐप बनाना हो सकता है, कोडिंग करना हो सकता है कि वो स्विगी ऐप के लिए हम कंटेक्स्ट और डेटा उसको बताएं तो वो 50% टाइम बचा दे। जो पास्ट में कोडर था, जिसको एक प्रोग्राम बनाने के लिए शायद 7 दिन 9 दिन लगते थे, या 25 दिन लगते थे, या 2 साल भी लगते थे कभी कभी,
एआई में उतना जो उसका कोडिंग का इफ एल्स लूप वाला प्रोग्राम था, वो अब एक नए तरीके से शायद 10 मिनट, 5 सेकंड, शायद नैनो सेकंड्स, मिली सेकंड्स में भी हो जाता है। सो बट एआई उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, दोनों में हम फर्क भी समझेंगे क्या होता है, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज चेंजिंग. AI automates the repetitive work. It helps you to have insight on data. It gives you quick results, right? It is working more like a workforce multiplier for the routine jobs. Now let's understand skills and new skills. But जो human है ना, उसके intervention relationship के बिना कुछ नहीं हो सकता. तो इसको हम बोलते हैं augmented AI. आदमी नहीं तो ये AI भी नहीं चल सकता, right? We will understand that. And it will help a human to have better productivity. That is what we need to understand. Let's go to next slide quickly. तो ह्यूमन जो है, जजमेंट तो उसी का ठीक होगा. वो उस डेटा को देख के बताएगा कि ये गलत है या खराब है. आप जब आजकल चैट जीपीटी से कुछ सवाल पूछते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन था. मेरे योगा टीचर घर आए और मेरी डॉटर को उन्होंने बोला, गौरी थैंक यू, तुमने ना मुझको बचा लिया चैट जीपीटी सिखा के. एंड आई वाज सो अमेज्ड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, राइट? एआई हम किसी ना किसी तरीके से रोज यूज करते हैं. और अभी ये वाली सिचुएशन को हम बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन की तरह समझने की कोशिश करते हैं हम लोग. तो गौरी ने पूछा, आप मुझे थैंक यू मैसेज भेजा था, क्यों भेजा, ऐसा क्या एआई ने कर दिया आपके लिए? तो वो उन्होंने बताया कि मैंने एक लंच में कुछ खाने की सब्जी बनाई थी संडे को, एज अ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको खुश करने के लिए. लेकिन जब मैंने वो खाने को टेस्ट किया, तो वो खाने के टेस्ट में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया. अब मैंने ये क्वेश्चन वो चैट जीपीटी को पूछा कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे ये नमक जल्दी से कम हो जाए और ये खाना टेस्टी हो जाए. तो वो कंटेक्स्ट एज अ सिचुएशन शायद चैट जीपीटी को पता था. तो चैट जीपीटी ने उसको बताया कि पहले आप सब्जी को ठंडा कर लें, देन यू विल पुट सम लेमन इन इट. विथ लेमन इट विल बी नॉर्मलाइजिंग दी सॉल्ट, राइट? और वो बोलते हैं, वाह सब्जी कितनी टेस्टी बन गई. उसके बाद मेरे को एआई ने हेल्प किया. तो स्पीड आ गई. वो वरना खाने में पानी डाल देते शायद और मसाला डालते. ऐसे ही करते हैं हम लोग. हमें इतनी सिंपल सी आंसर नहीं पता थी कि आज अगर हम वो नींबू का रस डाल दें उसमें, तो वो सब्जी अच्छी हो जाएगी और उनकी फैमिली में उनकी रेपुटेशन सेव हो गई, राइट? अब ऐसे ही एक और कुछ कंटेक्ट समझते हैं कि रिक्रूटर्स हैं यहाँ पे, टेस्टर्स हैं यहाँ पे. जब तक वो टेस्टिंग के पूरे सिनेरियोज एआई को डेटा के साथ नहीं बताएंगे, और उस एआई इंजन में, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे क्लॉड हो, चाहे जेमिनी हो, चाहे ग्रॉक हो, चाहे कुछ भी हो, उसको समझने की कैपेबिलिटी नहीं होगी एज अ कंटेक्स्ट, तो आपके बिहाफ पे ना वो टेस्टिंग कर सकता है. तो जो टेस्टिंग करने में आपको शायद मैन्युअली 10 दिन लगते थे, आजकल वो हम आधे घंटे में सारे सिनेरियोस कंटेक्स्ट सेट करने के बाद ह्यूमन की हेल्प से वो रिजल्ट्स को ले लेते हैं. लेकिन 20% काम आदमी करता है पहले, फिर 60% काम एआई इंजन करता है, और उसके बाद फिर से 20% एआई का जो रिजल्ट है वो आदमी इम्प्लीमेंट करके बताता है. तो ये खाने का सिनेरियो कितने लोगों को समझ में आया? एज अ एआई, एआई अपने आप कुछ नहीं कर सकता. उसको पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओगे, फिर वो उसको कॉन्टेक्स्ट समझेगा और सॉल्यूशन बताएगा. यानी इनपुट नहीं किया तो उसने भी कोई आउटपुट आपके लिए प्रोसेस नहीं किया, राइट? डू अंडरस्टैंड? तो एआई आप बोलो आपके लिए सुबह चाय बना देगा, बिल्कुल नहीं बना सकता है. आपका हार्ट बीट शायद मेजर कर ले एज अ बिजनेस फंक्शन, अगर आपके हाथ में एक अच्छी एप्पल वॉच या कोई भी आपने डिजिटल वॉच पहनी है, राइट? ह्यूमन ह्यूमन है, वो रहेगा वहीं पे वहीं. लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड क्विकली. अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. बहुत सारे लोगों के मन में दिमाग होता है, काम को समझते हैं, दो सिनारियोज में समझते हैं. जिनके पास चैट जीपीटी खुला हुआ है, वो वहां पे अपने आप टाइप कर सकते हैं. वो उसको एक सवाल पूछिए. ये सवाल के मैंने दो जवाब यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं. एक सवाल है, एक्सप्लेन ईआरपी टू अ 15 ईयर ओल्ड. इसकी पिक्चर रख लीजिए अपने पास और दोनों आंसर को निकालिएगा, चाहे चैट जीपीटी से निकालें चाहे प्लॉट से निकालें, और उसको पूछेगा कि दोनों कंटेक्स्ट का डिफरेंस समझिए.
एक में हमने बोला ईआरपी समझा दो, एक में बोला एसडी समझा दो। अब दूसरे वाले सिनेरियो में हम एक हल्दीराम जैसी कंपनी का सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं कि हल्दीराम ईआरपी को कैसे इस्तेमाल करता है। ठीक है, context. The better context we set to AI, we get more better answers, right? Is that clear to all of you? Say yes quickly. What is context is clear to all of you. Say yes or no. Is context being clear? Thank you. So let's keep moving. Let's go to next. थोड़ा रात होने वाली है, लंच डिनर के बीच में गैप ज्यादा ना हो तो हम सेशन बहुत जल्दी क्लोज करेंगे, और हमें तो अभी 5 दिन साथ में मिलके काम करना है। तो अभी हमने एक आज जो टर्म समझी कि एक सबसे अच्छा जो सॉफ्टवेयर होता है जो फाइनेंस को, सप्लाई चेन को, सीआरएम को सबको जोड़ के रखता है, उसको ईआरपी बोलते हैं। एसएपी नाम की ये जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, 80% कंपनियां उसको यूज करते हैं। ये जीसीसी क्या होता है ये भी समझ में आया, और वो केपीआई मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाया था। नमक ज्यादा हो गया, नमक कैसे कम हो, मेजरेबल वैल्यू को हम केपीआई बोलते हैं। को रिजल्ट चाहिए था कि नमक कैसे कम करें, सेल्स कैसे बढ़ाएं, हमारा बिजनेस कैसे अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करें, हम ये टेस्टिंग को कैसे फास्ट करें, ये चीजें केपीआई होती हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको वर्कबुक में लिखने की कोशिश करी है। लेट्स अंडरस्टैंड द इंडस्ट्रीज। अ बैंक नीड्स रिस्क एनालिसिस एंड ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम के अंदर वो सारा डेटा आता है। आजकल फिनाकल है, ऑरेकल है, बहुत सारे कंपनियां हैं जो कोर बैंकिंग सिस्टम बनाते हैं। रिटेल का एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आप कुछ खरीदते हैं, उसको पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पे एक सप्लाई चेन एनालिस्ट होता है। उसके लिए टूल की जानकारी होनी चाहिए कि मटेरियल मैनेजमेंट और पीपी कैसे चलता है। ऑपरेशन एसोसिएट्स होते हैं हेल्थ केयर में जो आपको क्लेम प्रोसेस कर देते हैं या कोई और काम करते हैं, उसको एम्प्लॉय सॉरी एक हेल्थ केयर सिस्टम में ईएचआर सिस्टम बोलते हैं, वो पता होने चाहिए। तो ये जो करियर है, रिस्क एनालिस्ट, कैटेगरी मैनेजर, सप्लाई चेन एनालिस्ट, ऑपरेशंस इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और इन एनीथिंग, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी को सीखना या करियर सीखना? आप बताइए मेरे को, जल्दी से बताइए किसको समझ में आया करियर क्या होता है और टेक्नोलॉजी क्या होता है। लिखिए इसको। लॉट ऑफ यू may have understood, lot of you may not have understood what is career, right? That is what we have to know, not the technology. Every day we try to learn technology, technology, technology. Please do not do that. Power BI, Salesforce, nothing is required. Focus on career, right? If you want to be consultant, there is something what you have to know. As consultant, what problems you can solve, that is what we have to know, right? Not these tools. तो बहुत सारे बच्चे जब एसएपी सीख लेते हैं वो कहते हैं यार मुझको जॉब ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता। दैट इज द वेयर लैक। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर 12 साल तक एक जैसा काम कर रहा है, उसको आज पता ही नहीं है कि एआई क्या है। वो एआई इंजीनियर कहाँ से उसको जॉब मिल जाएगी भाई, राइट? दैट इज व्हाट आई वांट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव फर्स्ट। So we are in day one. Please understand what exactly is career, not technology, right? This is what big thing you all need to understand. Is that clear to all of you? Let's move to next slide quickly. So first is we have to do a reality check. आज हम करियर की बात कर रहे थे, ठीक है? वुड यू रीलोकेट फॉर द राइट रोल? अपने आप लिखिए अपने पास कि मैं भोपाल में रहता हूं, मुझे अगर अपने मनपसंद करियर की जॉब मिल गई तो मैं चेन्नई जाऊंगा। क्या मैं अपने एक्सपीरियंसेस को ग्लोबल टीम्स में काम करके देखना चाहूंगा, राइट? क्या आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है? वो पजल होती है ना, एक पजल में आपको कितना मजा आता है, अपनी सेल्फ रेटिंग करिए। बहुत सारी पजल्स आती है ना वो, जिसको हम पेपर में देखते थे पहले। पहले आप वो देखिए कि आपको उसमें इंटरेस्ट कितना है। फिर लास्ट में एक फोर्थ सवाल है आपके लिए, सबके लिए, ये लिख के रखिएगा प्लीज, वर्कबुक में है। जिसको भी वर्कबुक लिंक चाहिए होगा, मैं इसके बाद एक लिंक्डइन खोलूंगा, वहां पे लिंक्डइन में आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर दिखाएंगे हम आपको, कल भेजेंगे। वहां पे आप पूछिए कि आपको कितना समझना है, बार बार पूछिए, आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। ठीक है, आप देखिए कि आपके आइडियाज कितने आते हैं आपके दिमाग में।
एक बच्चे ने बोला मैं अपना गेमिंग का बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को समझ में आया पैसा कैसे कमाते हैं। मैंने बहुत अच्छा वो गेमिंग जोन बनाया, कुछ लैपटॉप वैपटॉप इकट्ठा किए। आई हर्ड ऑल दो स्टोरीज, राइट। आई गिव यू एन नंबर ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड। पहले 5 सवाल लिख लो अच्छे से भाई। दिस इज वॉट यू हैव टू नो, ऑल ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड कि कल को कोई श्रीनगर से यहाँ बच्चा है आज, उसको जॉब मिल जाए तो क्या वो सिंगापुर जाएगा? जॉब या करियर, पहले ये समझ लेना। मनपसंद करियर, राइट, व्हाट यू वांट टू डू। अभी तो करियर भी समझेंगे। करियर मैंने पीछे से फिर, लेट्स गो बैक टू वन स्लाइड बैक। तो एक बच्चे ने मुझको पूछा था कि मैं टेस्टर हूं, मैं क्या एसएपी सीख लूं, मुझको कौन सा मॉड्यूल अच्छा लगेगा। मैं उसको बोलूंगा बेटा रुक जा, पहले तो ये समझ कि तू करना क्या चाहती है ना, और उसके लिए हमें क्या समझना होगा वो भी बताएंगे आपको। नेक्स्ट आइए। करियर की डेफिनेशन को पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन वापस आएगी। करियर रियलिटी चेक के लिए 5 सवाल सबके लिए, इसके आंसर्स लिखेंगे हम, वर्कबुक में है ये। कोई चाहे रीस्टार्ट करना चाहता हो, कोई एक्सपीरियंस्ड हो, कोई 30 साल का आदमी आज हो, इसमें 50 साल का आदमी हो, सबके लिए ये करियर रियलिटी चेक है, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। लेट्स गो टू नेक्स्ट। सो जो फ्यूचर है वो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री का वेट नहीं करेगा भाई। इट विल बी गोइंग एज पर people who are learning. That is one goal you have to set, right? Tonight, don't think about which course to join. If someone, मैं फिर से वहां चला जाता हूं कि वो 60 लाख रुपए की हमने शुरू में एक जॉब दिखाया था। 9-10 साल बाद आप सोचते हो कि मैं हेड ऑफ सेल्स हूँ, हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हूँ, मे बी हेड ऑफ आईटी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ, मे बी एक एसएपी कंसल्टेंट जो प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया बहुत बड़ी पोजीशन पे। उसको सोचना होगा कि मेरे को वो जॉब ऑफर 60 लाख रुपए का क्यों मिलेगा, राइट। दैट इज वेयर वी हैव टू डू, दिस इज व्हाट दिस सेशन इज ऑल अबाउट, राइट। दैट इज व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू एक्सप्लेन। थिंक अबाउट अ करियर, थिंक अबाउट योर understanding on career, not the technology, right? Technology is just a tool. We'll understand that much better, right? So you want to work in retail industry as category manager, you want to work in human resource itself, बट यू आर वरिड कि मैं रिक्रूटर हूं, ये तो काम नहीं बन रहा है, मेरे को एक अच्छा एचआर ऑपरेशंस में रिक्रूटर ऐसा बनना है कि जिसको अपने आप दिन की जॉब में 1 लाख रुपए सैलरी मिल जाए। इट कुड बी एनीथिंग। अगर आप कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो एसएपी उसके बाद आएगा, कंसल्टेंट हु नोज एसएपी। पहले कंसल्टेंट क्या होता है ये समझना होगा आपको, जो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करे, राइट। पहले आप इसको समझ लीजिए। सो दैट इज वेयर टुमारो वी विल बिल्ड। हम कल फिर से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को मैं दिन में बहुत सारा एंगेजमेंट भेजूंगा, आपको वर्कबुक भेजूंगा। कीप पार्टिसिपेटिंग ऑन दैट। यहाँ पे कोई एसएपी की ट्रेनिंग नहीं बेचेंगे हम लोग। हम एआई समझेंगे, करियर समझेंगे, एसएपी समझेंगे, दुनिया को क्या चाहिए ये समझेंगे, और ये 5 दिन बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे। सबको एक आउटकम मिलना चाहिए। माय करियर, माय रोड मैप, as 6 months, 1 year, 2 year, 3 year, 5 year, 7 year, 8 year, 10 year. You should be in position to define that. हो सकता है बीच में कुछ चेंजेस आए, क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी है, कभी भी कुछ बदल जाएगी। जो लर्नर होगा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लर्न करना बंद कर देगा उसके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, जो बुक्स पढ़ना बंद कर लेगा उसके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, जो यूट्यूब में अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस देखना बंद कर देगा उसके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो आप क्या देखना पड़े, वो इंस्टाग्राम वाले स्टाइल वाले वीडियोस या अपने मनपसंद? आप जो मांगेंगे इंस्टाग्राम से वही आपको वापस देगा। सो विल डिस्कस टुमारो, वी विल अंडरस्टैंड। हमने आज थोड़ा दुनिया समझा, we explore something that is very important: strength, interest, what kind of personality you are, what work style. We'll keep discussing all of this, right? Many people choose career as without understanding. उसी का नतीजा है किसी किसी को आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या किसी को आज वो पहली जॉब बहुत अच्छी मिल गई थी। और वो जो बच्ची थी उसकी स्टोरी भी दिखाऊंगा मैं आपको, रियलिटी में बहुत सारी रियलिटी वाली स्टोरीज है मेरे पास। और एक्चुअली मैं आपको एक बच्चे का वीडियो भेजूंगा, जब आप मेरे साथ एंगेज होंगे आप उस बच्चे को लिंक्डइन में खुद पहुंच सकते हो, उससे बात कर सकते हो, उसका करियर कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ और आज वो अपने ड्रीम करियर की तरफ
दे दनादन वाला जो स्पीड होता है ना, एवरी ईयर प्रोग्रेसिंग बाय दैट। और उसका करियर ड्रीम जो है, एज 7-8 years आई एम डैम श्योर उसने सोचा हुआ है बच्चे ने कि मैं 45 की एज पे रिटायर कर जाऊंगा, मेरे पास इतना सारा बैंक बैलेंस होगा। शायद मुझको भी कोई आपसे 20-25-30 साल पहले भाई ये टिप्स दे देता ना, मैं 40 years की एज पर रिटायर हो जाता दोस्त, खूब सारे पहाड़ घूमने जाता, खूब सारे पैसे कमाता, उसके बाद खूब घूमता, खूब सारे खर्चे करता। मेरे को एट एज ऑफ 55 आज भी बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। शायद मेरे को वो सक्सेस तो मिली है, पर जो सक्सेस मैंने सोची थी अभी थोड़ा दूर हो गए। राइट, विल टॉक अबाउट इट। तो ऑल ऑफ दिस आई होप, लेट्स गो टू लास्ट स्लाइड इन टुडेज सेशन। प्लीज कनेक्ट, मेरे को लिंक्डइन में आप लोगों का एक्जेंशिया एकेडमी वाला एक ग्रुप है, आप मेरे को फॉलोअर्स में चाहिए। मैं आपको क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन दूंगा, इसको जरा स्कैन करिए और आप वहाँ पे लिंक्डइन पेज दिखाइए एक्जेंशिया एकेडमी का, और मेरा वाला भी खोलिए जरा आप। मृदुल मृदुल मेरे को हेल्प कर रहे हैं, मेरे कॉलीग हैं, और इन्होंने एमबीए किया है टीआईटी से। तो ही इज अ एक्साइटिंग मार्केटिंग करियर एस्पिरेंट हु इज वर्किंग विथ मी। मृदुल भाई जरा दिखाइए प्लीज एक्जेंशिया एकेडमी का पेज, वहां पे आप लोग लाइक करिए, उसके बाद चैट करिए, व्हाट्सएप चैनल में करिए, कहीं भी करिए। प्लीज इसको अंडरस्टैंड करिए कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन बॉन्ड नहीं हुआ तो मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा, और मेरे को एक समय में एक आदमी बात करने से बहुत दिक्कत होती है, टाइम की बहुत कमी है। मैं जितना भी अपना नॉलेज बेस है, आई विल ट्राई एंड शेयर एज बेस्ट एज आई कैन। और आज के लिए फिर मैं थैंक यू शुक्रिया बोलूंगा। कुछ कल पोलिंग आएगी, कुछ डेटा आएगा, जैसे जैसे आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स करोगे उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन, कंटेंट, बुक, जो भी डिटेल अपने से बन पड़ेगी वो शेयर करेंगे, एंड विल इंश्योर कि आपको कोई भी मेरे से ये एसएपी जैसे सवाल की मैं आपके पास ट्रेनिंग कर लूं क्या, मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं करने हैं। जब तक तुम्हारे को अपना करियर नहीं पता मेरे पास मत आना भाई। आई एम नॉट अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आई डोंट डू दैट। राइट, इफ यू हैव एनीथिंग, दिखाइए जरा मृदुल भाई हमारा लिंक्डइन का पेज, खोलिए जरा वेबसाइट, इसको स्लाइड को जरा नीचे करिए, आप मेरे को अलाउ कर दीजिए मैं सबको शेयर करूँ। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सबके साथ, सब बता सकते हैं मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। और मैं यहाँ पे आपको दो चीज दिखाऊंगा, एक लिंक्डइन, मैं कहाँ पर हूँ। आप जब तक मेरे को भाई ये जो ऊपर से ऐसा कुछ करते हैं, मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल मनोज गुप्ता के नाम से सर्च करिएगा, तो हो सकता है आपको ये मैं तस्वीर में दिख जाऊं। अगली बार मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, बहुत सारे लोग मुझको ऑलरेडी जानते हैं। एक तो ये सर्च करिए, और मेरे को देखिए मैं कहाँ पे मिलूंगा आपको, मेरे को ढूंढ के लाइक करिए। और एक एग्जेंशिया एकेडमी सर्च करेंगे हम सब लोग, और एग्जेंशिया एकेडमी का पेज लाइक करिए, तब आप लोग के साथ हम बहुत सारी एंगेजमेंट बिल्ड करेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। आई होप टुडे सेशन वाज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। इट्स 8 p.m. Much good night. Maybe people are across the globe. Good morning, good afternoon, good evening, wherever they are from. See you again tomorrow, same time. I hope you will come in large numbers and we will take unique benefit out of this session. Thank you so much. I'm glad all of you joined. Take care. Good night. Bye bye. We'll end the session today.